So today we start the next part of the topic lichen. In today's class, first of all, we go through a topic called internal structure of lichen. Internal structure of lichen. We go through a topic called internal structure of lichen. In lichen, we study the vertical section of foliose lichen. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि तीन तरह का लाइकन होता है, क्रस्टोज लाइकन, फॉलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन. सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वर्टिकल सेक्शन VS ऑफ foliose lichen which is leaf like. Okay, now this vertical section of foliose lichen consists of four layers: upper cortex, algal layer, medulla and lower cortex. It consists of four layers. What are these layers? Upper cortex, second is algal layer, third is medulla, and the fourth is what? Lower cortex. Okay, so first of all we deal with upper cortex. यहां तक समझ आया? Upper cortex. This upper cortex part of the lichen consists of compactly arranged interwoven, means intermingled fungal hyphae. It is made up of compactly arranged interwoven fungal hyphae. Now, intercellular space is totally absent in upper cortex. If present, it is filled up with gelatinous substance. Intercellular space is completely absent, and if present, अगर ये मौजूद होता है, it is filled with, ये किससे भरा हुआ होता है? gelatinous substance. Okay, now in some lichens breathing pores are present on upper cortex. In some lichens जैसे कि पामेलिया, breathing pores are present on upper cortex. Okay, so this is the characteristics of upper cortex of vertical section of foliose lichen. पहला जो upper cortex है, it is made up of compactly arranged interwoven fungal hyphae. Second, intercellular space is basically absent, or if present, it is filled with gelatinous substance.
and some lichen in the upper cortex breathing pores are present like Parmelia. Okay, यहां तक क्लियर है? Now let's come to the second part, that is algal layer. Algal layer is also known as gonidial layer. Okay, algal layer. It occur just below the upper cortex. It occur just below the upper cortex. Upper cortex के just below ये पाया जाता है. This layer, ये जो algal layer है, it forms the photosynthetic zone of the thallus. This layer forms the photosynthetic layer of the thallus. ये लेयर क्या फॉर्म कर रहा है? फोटोसिंथेटिक लेयर ऑफ द थैलस को फॉर्म करता है. नेक्स्ट, इन दिस लेयर एल्गल सेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि नाम ही एल्गल लेयर है. इन दिस लेयर एल्गल सेल्स आर प्रेजेंट एंड some fungal hyphae are randomly oriented. In this layer algal cells are present, ठीक है, and some fungal hyphae are randomly oriented. Some fungal hyphae are randomly oriented. So this layer is also called, इस लेयर का दूसरा नाम क्या है? गॉनिडियल लेयर. गॉनिडियल लेयर. ओके, अब थर्ड लेयर क्या है? यहां तक समझ आया? एल्गल लेयर तक. अब थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर है मेडुला. मेडुला में फिर, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज इंटरओवन फंगल हाइफी. इट इज made up of loosely arranged interwoven फंगल हाइफी. है ना, खाली हाइफी होने से हो सकता है कि दिमाग में नहीं काम करे. क्या है? फंगल हाइफी. लूजली अरेंज्ड interwoven fungal hyphae. Okay, with long space, with large space, actually with large space. यानी इसमें this medulla layer is just opposite to upper cortex. upper cortex में था compactly arranged interwoven fungal hyphae. यहां पे क्या हो गया? loosely arranged interwoven fungal hyphae with large space. Okay, now with large space between them. ऑटोमेटिक है कि जब लूजली अरेंज होगा तो इन बिटवीन द हाइफी देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, एंड दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड. विच आर रैंडमली ओरिएंटेड. कौन रैंडमली ओरिएंटेड होगा? फंगल हाइफी. रैंडमली ओरिएंटेड. ओके, नेक्स्ट, अब क्या बचा? लोअर कॉर्टेक्स. लोअर कॉर्टेक्स इज जस्ट लाइक अपर कॉर्टेक्स. It is made up of compactly arranged interwoven, मतलब उलझा हुआ interwoven fungal hyphae.
समझ आया क्या बोल रहे हैं? ओके, देखो अब आ जाओ फोर्थ लेयर में। फोर्थ लेयर क्या है? लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स में क्या होगा? इट इज मेड अप ऑफ compactly arranged interwoven mass of fungal hyphae। compactly arranged interwoven mass of fungal hyphae, ठीक है। अब कुछ हाइफी इसमें से स्पेशलाइज्ड हो जाता है and extend downward from the lower surface of the cortex. Some of the hyphae become specialized. Some of the hyphae, जो फंगल hyphae है वो स्पेशलाइज्ड होता है and extended डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, फैलता है, कहां से? फ्रॉम द लोअर कॉर्टेक्स, फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ओके, फ्रॉम द कॉर्टेक्स लोअर सरफेस, लोअर सरफेस। एंड व्हाट इट हेल्प्स? इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ थैलस टू द सबस्ट्रेटम एंड हेल्प्स in the attachment of the thallus, attachment of the thallus to the substratum। substratum means proper medium जहां पे ये लग सकता है, ठीक है। अब ये जो स्पेशलाइज्ड हाइफी है जो कि कॉर्टेक्स के लोअर पार्ट से हैंग करके सबस्ट्रेटम को एंकरिंग कर रहा है, पकड़ रहा है, उसको राइजीन बोलते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड हाइफी आर नोन एज राइजीन। स्पेशलाइज्ड हाइफी को क्या कहा जाता है? राइजीन कहा जाता है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो क्रस्टोज लाइकन है और हम लोग जो यहाँ फॉलियोज लाइकन को दिखा रहे हैं, बोथ आर जनरली सेम, बट फ्रूटिकोज लाइकन से फॉलियोज लाइकन एक जगह डिफर करता है, दैट इज फ्रूटिकोज लाइकन में लोअर कॉर्टेक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मेडुला है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सिस होता है और फ्रूटिकोज लाइकन सिलिंड्रिकल भी स्ट्रक्चर में होता है। एंड दैट इज व्हाई फ्रूटिकोज लाइकन इज सिलिंड्रिकल इन स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन एक्सिस इज मेडुला एंड ऑल्सो इट लैक्स लोअर कॉर्टेक्स। और लोअर कॉर्टेक्स क्योंकि फ्रूटिकोज लाइकन में नहीं होता है इसलिए वो डिफर करता है फॉलियोज लाइकन से। तो ये डिफरेंस हो गया फ्रूटिकोज और फॉलियोज लाइकन में। आई थिंक नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ फॉलियोज लाइकन। ओके, यहां तक समझ आया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन लाइकन। नेक्स्ट टॉपिक इज reproduction in lichen. Okay, now lichen perform two mode of reproduction. One is asexual, or we can say vegetative reproduction, and another is sexual. First is vegetative reproduction. Vegetative reproduction
ठीक है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, अब इसके बारे में जानना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप है या पहला प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन वर्ड आया है फ्रैगमेंट से, एंड फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस, और जिसको हिंदी में टुकड़े बोलते हैं। तो लिखेंगे द मेन थैलस, द मेन थैलस breaks, the main thallus breaks into small pieces, and each piece grows into a new thallus, और हर एक पीस क्या होगा, डेवलप इनटू अ न्यू लाइकेन थैलस। लिख दो लाइकेन थैलस, ठीक है। सो इट कंटेन, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इट कंटेन बोथ एल्गल, इसमें दोनों चीज पाया जाता है, एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट है सोरिडियम। सेकेंड क्या है, सोरिडियम। व्हाट इज सोरिडियम? A soridium contain one or few algal cells. A soridium contain one or few algal cell, okay, which are closely enveloped by fungal hyphae, which are closely enveloped by what? Weft of फंगल हाइफी, जो फंगल हाइफी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। नाउ सोरिडिया जो है, इट फॉर्म्स अ ग्रैन्युलर लेयर ऑफ ग्रेइश व्हाइट कलर। सोरिडिया forms a granular layer, सोरिडिया क्या फॉर्म करता है, ग्रैन्युलर लेयर ऑफ ग्रेइश व्हाइट कलर। इट फॉर्म्स अ ग्रैन्युलर लेयर, किस कलर का, ग्रेइश व्हाइट कलर का, ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस, ऑन द सरफेस ऑफ द थैलस, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा सोरिडिया है, जो सरफेस ऑफ द थैलस में एक ग्रैन्युलर लेयर बनाता है, ये थैलस से डिटैच होता है, कैसे, by the impact of wind or water, ठीक है। they are detached, detached मतलब होता है अलग होना, they are detached from the thallus by the impact of wind or water, ठीक है। नाउ द सोरिडियम जर्मिनेट ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड फॉर्म न्यू थैलाई। द सोरिडियम व्हाट, जर्मिनेट, द सोरिडियम जर्मिनेट ऑन suitable substratum and forms, और क्या बनाएगा, न्यू थैलस या न्यू
थैलाई। ठीक है, तो यहां तक समझ आया? देखो फिर से एक बार बता रहे हैं कि सोरिडियम में एक या एक से ज्यादा या कुछ एल्गल सेल पाया जाता है जो चारों तरफ से फंगल हाइफी से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट, सोरिडिया एक ग्रैन्युलर लेयर फॉर्म करता है ग्रेइश व्हाइट कलर का, जो कि सरफेस ऑफ द थैलस में पाया जाता है, और ये सरफेस ऑफ द थैलस से अलग होता है बाय विंड और वाटर। नेक्स्ट, जैसे ही सोरिडियम सुटेबल सबस्ट्रेटम में गिरता है ये जर्मिनेट करता है और न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब थर्ड जो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है वो है इसीडियम। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी द थर्ड, दैट इज इसीडियम। इसीडियम थर्ड, that is C. Isidium, ISCIDIUM. Isidium. What these are? These are small stalked grayish black, स्मॉल है, स्टॉक्ड है, ग्रेस ब्लैक इन कलर है, कोरल लाइक आउटग्रोथ है, विच डेवलप्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस। ये जो इसीडियम है ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड है, ग्रेइश ब्लैक इन कलर है, और इसमें ये कोरल लाइक आउटग्रोथ है जो कहां डेवलप करता है? अपर सरफेस ऑफ द थैलस। ठीक है, नेक्स्ट, इसीडियम में आउटर कॉर्टिकल लेयर है। द इसीडियम have outer cortical layer। ये जो इसीडियम में आउटर कॉर्टिकल लेयर है ये क्या करता है? ये इंक्लोज करके रखता है, ये घेर के रखता है बोथ एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट, which encloses both algal एंड फंगल कंपोनेंट, ये दोनों को इंक्लोज करके घेर के रखता है। नेक्स्ट, इट इज, ये जो तुम्हारा इसीडियम है इट इज यूजली कंस्ट्रिक्टेड एट द बेस। इट इज यूजुअली constricted at the base। यूजुअली ये जो इसीडियम है ये बेस में थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, एंड इजिली डिटैचेबल यानी अलग होता है, इजिली डिटैचेबल फ्रॉम द थैलस, फ्रॉम द पेरेंट थैलस, या थैलस बात एक ही है, फ्रॉम द पेरेंट थैलस। नेक्स्ट क्या है कि इट जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये जो इसीडियम है ये फेवरेबल कंडीशन में इट जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करता है एंड फॉर्म्स अ न्यू थैलस, एंड फॉर्म्स अ न्यू थैलस। ओके, ये है वेजिटेटिव प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट, इन एडिशन टू प्रोपोगेशन, मतलब नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ इसीडिया ऑल्सो हेल्प्स in increasing the photosynthetic surface of the thallus। in addition to क्या
propagation. In addition to propagation, it also helps in, it मतलब ईसीडियम, it also helps in increasing the, it also helps in increasing the photosynthetic surface area, ठीक है, ऑफ द थैलस. ऑटोमेटिक है कि थैलस में है तो थैलसी का असर बढ़ाएगा, ऑफ द थैलस. अब ये शेप में वेरी करता है, कहीं पे ये रॉड लाइक है, कहीं पे कोरल लाइक है, कहीं पे सिगार लाइक है, ठीक है. इट वेरीज इन शेप, दैट इज क्या क्या देखो, रॉड लाइक. रॉड लाइक के एग्जांपल पामेलिया, उसके बाद स्कोरल लाइक, पेल्टागेरिया है ना, पेल्टिगेरा. उसके बाद सिगार लाइक, सिगार जैसा होगा. सिगार लाइक में क्या होगा, उसनिया, जिससे उसनिक एसिड बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी बनता है, ठीक है. तो ये हो गया ईसीडियम का डिटेल. यहां तक समझ आ गया? यस सर. ठीक है. तो देखो ईसीडियम क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करता है लाइकेन को. ये स्मॉल है, स्टॉक्ड है, ग्रेइश ब्लैक इन कलर है. ये कोरल लाइक होता है, कोरल समझते हैं ना, जो समुद्र में पाया जाता है, कोरल लाइक आउटग्रोथ है, जो कि किसी भी लाइकेन थैलस के अपर सरफेस में पाया जाता है. नेक्स्ट, इस ईसीडियम में एक आउटर कॉर्टिकल लेयर होता है जो चारों तरफ से एल्गल और फंगल कंपोनेंट को घेर के रखता है. नेक्स्ट, ये बेस का जो बेसल पोजीशन है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है, एकदम पतला सा होता है, इसलिए ये आसानी से पैरेंट थैलस से डिटैचेबल यानी अलग हो सकता है. फेवरेबल कंडीशन में ईसीडियम जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके नए थैलस का फॉर्मेशन करता है. प्रोपोगेशन के साथ साथ ईसीडियम का और एक काम है, ये लाइकेन थैलस में जो फोटोसिंथेटिक सरफेस एरिया है उसको भी बढ़ाता है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक स्मॉल टॉपिक आता है इसमें, नीट में कभी कभार पूछा गया है, सिफेलोडियम. तो सिफेलोडियम क्या है, जो कि एक स्मॉल वॉट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सरफेस में पाया जाता है थैलस का, लाइकेन का, या लाइकेन थैलस के अंदर भी पाया जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट इसमें एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिफेलोडियम, जो कि एक्चुअली, ठीक है, सोरिडियम से बनता है. देखो सिफेलोडियम, सिफेलोडियम, ठीक है. अब सिफेलोडियम क्या है, अभी तुम लोगों को बताएं कि ये एक स्मॉल वॉट लाइक स्ट्रक्चर है. These are small wart like structure. ये एक स्मॉल वॉट लाइक स्ट्रक्चर है, formed on the surface or inside the thallus. ये सरफेस में पाया जाता है या थैलस के अंदर पाया जाता है. ठीक है. इस सिफेलोडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दैट इज, ठीक है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट्स एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द थैलस. Its algal and fungal component differ from the thallus. ठीक है. थैलस से एल्गल और फंगल कंपोनेंट डिफर करता है. क्यों? क्योंकि सिफेलोडिया डेवलप ऑन यंगर पार्ट ऑफ द थैलस.
as cephalodium develops on the younger parts of the थैलस। सिफेलोडियम जो है ये डेवलप करता है यंगर पार्ट ऑफ द थैलस में फ्रॉम सोरिडिया, अभी बताए थे ना, फ्रॉम सोरिडिया, ठीक है, सोरिडिया ऑफ अदर स्पीसीज, फ्रॉम सोरिडिया ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, सिफेलोडियम का। नेक्स्ट होता है कि इसमें ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, दीज यानी सिफेलोडियम रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को रिटेन करता है। और इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में जो सिफेलोडियम है ये कंटेन द सेम फंगल स्पीसीज एज इन द थैलस। In some species, the cephalodium contains the same fungal hyphae as in thallus। सेम फंगल हाइफी एज इन थैलस, ठीक है। अब लेकिन एल्गल कंपोनेंट डिफरेंट होता है, बट द एल्गल कंपोनेंट इज डिफरेंट। एल्गल कंपोनेंट इज डिफरेंट, समझो। सिफेलोडियम एक स्मॉल वॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि लाइकेन के थैलस में उसके सरफेस लेयर में या उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका सबसे यूनिक फीचर है इसका एल्गल और फंगल कंपोनेंट जो होता है वो इसके थैलस से डिफर करता है। क्यों? क्योंकि सिफेलोडियम डेवलप करता है कहां पे, यंगर पार्ट ऑफ द थैलस में, किससे, फ्रॉम सोलिडिया ऑफ अदर स्पीसीज। अब सिफेलोडियम में सबसे बड़ा क्वालिटी है कि ये रिटेन करता है मॉइस्चर को, और कुछ स्पीसीज में सिफेलोडियम का जो फंगल हाइफी है वो थैलस के जैसा ही होता है, लेकिन एल्गल कंपोनेंट डिफर करता है। एल्गल कंपोनेंट डिफर करता है। यहां तक समझ आया? अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेजिटेटिव बोलो या एसेक्सुअल बोलो, इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द फंगल पार्ट ऑफ द लाइकेन, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व कौन होता है लाइकेन में, फंगस पार्ट। एंड फंगस पार्ट में भी बेसिकली इसमें कौन सा पार्ट होता है, कौन सा क्लास होता है फंगस का, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंगस लाइकेन दो प्रकार का होता है, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मोस्ट कॉमन लाइकेन इज क्या, एस्कोलाइकेन, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज द फंक्शन ऑफ फंगल कंपोनेंट। ये किसका फंक्शन है, फंगल कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब फंगल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द लाइकेन belong to the class Ascomycetes. The
फंगल component of most of the lichen belongs to the class, क्या क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट में आओ। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहा जाता है लाइकेन में, और मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मोगोनियम कहा जाता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मोगोनियम कहा जाता है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पोगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मोगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पोगोनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट, सबसे पहले कार्पोगोनियम में आते हैं, ठीक है। कार्पोगोनियम, ठीक है। कार्पोगोनियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स क्या है? लोअर कॉइल पार्ट को कहा गया है एस्कोगोनियम एंड अपर स्ट्रेट पार्ट को कहा गया है ट्राइकोगाइनी। दैट इज लोअर कॉइल्ड पार्ट को क्या कहा गया है? एस्कोगोनियम, एंड अपर स्ट्रेट पार्ट को कहा गया है क्या? अपर स्ट्रेट पार्ट को कहा गया है ट्राइकोगाइन, TRICHOGYNE, ठीक है। अब एस्कोगेनियम जो है ये रिमेन इंबेडेड इन द एल्गल लेयर ऑफ द थैलस। एस्कोगोनियम रिमेन इंबेडेड, घेरा हुआ रहता है, किसमें? इन द एल्गल component ऑफ द थैलस। एस्कोगोनियम घेरा हुआ रहता है एल्गल कंपोनेंट ऑफ द थैलस में, ठीक है। जबकि ट्राइकोगाइन प्रोजेक्ट ओवर द सरफेस ऑफ द थैलस, whereas ट्राइकोगाइन प्रोजेक्ट ओवर द सरफेस ऑफ द थैलस। ये जो ट्राइकोगाइन है ये थैलस के ऊपर प्रोजेक्शन करता है। कौन? ट्राइकोगाइन, ठीक है। क्योंकि एस्कोगोनियम तो चारों तरफ से एल्गल कंपोनेंट से घेरा हुआ है, और बचा कौन? ट्राइकोगाइन। वो प्रोजेक्ट करता है अबव द सरफेस ऑफ द थैलस। कौन सा थैलस? लाइकेन थैलस, ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखो कार्पोगोनियम के बाद है स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम है मेल सेक्स ऑर्गन, और इसमें जो मेल गैमेट बनेगा उसको बोलते हैं स्पर्मेशिया, ठीक है। अब
कार्पोगोनियम के बाद स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियम। स्पर्मोगोनियम क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद इट इज फ्लास्क शेप्ड, ये फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, इट ओपन्स बाय ऑस्टियोल, ये फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर, मान लो ये जैसे फ्लास्क शेपेड स्ट्रक्चर है स्पर्मोगोनियम, तो ये बाहर से जो ओपन होता है इस पोर को कहा जाता है ऑस्टियोल, ठीक है। अब इनसाइड स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियम क्या पाया जाता है? नॉन मोटाइल स्पर्म और स्पर्मेशिया। इनसाइड स्पर्मोगोनियम क्या पाया जाता है? नॉन मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेशिया, ठीक है, आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इनसाइड स्पर्मोगोनियम कौन पाया जाता है? नॉन मोटाइल स्पर्म या जिसको स्पर्मेशिया कहा जाता है। अब स्पर्मेशिया जब इस ऑस्टियोल के बाहर निकलता है एक स्लाइमी मास के रूप में निकलता है, जब ये मैच्योर हो जाता है। द स्पर्मेशिया oozes out of the ostiole, oozes out of the ostiole in the form of, किस फॉर्म में? in the form of slimy mass, in the form of slimy mass, ठीक है, and attach with the trichogyne, and ये स्पर्मेशिया स्लाइमी मास के रूप में जो निकला किससे अटैच होगा? अटैच विद द ट्राइकोगाइन। ट्राइकोगाइन क्या है? आउटर प्रोजेक्टेड पार्ट है किसका? कार्पोगोनियम, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन का। ट्राइकोगाइन एंड वॉल ऑफ these two means slimy mass and trichogyne dissolve, soon dissolve। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस है स्पर्मेशिया का वो कहां जाता है? एस्कोगोनियम के अंदर जाता है थ्रू द ट्राइकोगाइन, और वहां पे जाके वो फर्टिलाइज करता है और एस्कोगोनियम हाइफी बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेशिया रीचेज इन एस्कोगोनियम। ये जो स्पर्मेशिया का न्यूक्लियस है वो एस्कोगोनियम के अंदर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है? मैनी एस्कोगोनियल हाइफी अराइज फ्रॉम, मैनी एस्कोगोनियम हाइफी arise from, many एस्कोगोनियम हाइफी arise from किससे? फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम, फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम। मैनी एस्कोगोनियम हाइफी arise from फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम, ठीक है, ये तक हो गया। अब ये जो एस्कोगोनियम हाइफी है ये या तो यूनिन्यूक्लिएट होगा या तो बाइन्यूक्लिएट होगा। क्या होगा? यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट, और ये या तो टर्मिनल इन पोजीशन होगा और सब टर्मिनल इन पोजीशन होगा, ठीक है, जो कि आगे जाके डेवलप्स इनटू एस्कस। ये किस में डेवलप होगा? एस्कोगोनियम हाइफी एस्कस में डेवलप होगा, ठीक है।
और एस्कस में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा। एंड इन एस्कस बोथ न्यूक्लियाई fuse to form diploid nucleus, fuse to form diploid nucleus। ठीक है, ये हो गया स्पर्मोगोनियम में। अब जब एस्कस बन जाता है और उसमें डाइप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें एक मियोसिस होता है और उसके बाद तुरंत एक माइटोसिस होता है। One meiosis and one mitosis takes place, as a result of which inside the ascus 8 ascospore are formed। कितना एस्कोस्पोर बनता है? 8 एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड। ठीक है, और एस्काई जो है ये बाहर से कवर्ड है, किससे? पाराफाइसिस से। एंड एस्काई आर कवर्ड बाय पाराफाइसिस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया स्पर्मोगोनियम में क्या होता है? देखो, स्लाइमी मास हो गया मैच्योर स्पर्मेसिया। मैच्योर स्पर्मेसिया मीन्स मैच्योर स्पर्म विच कम्स आउट ऑफ द स्पर्मोगोनियम, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। समझ आया? yes, ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? स्पर्मोगोनियम में क्या होगा? In ascus, one meiosis and one mitosis। ठीक है, डिवीजन टेक्स प्लेस। एक मियोसिस और एक माइटोसिस होता है, तो क्या होता है? 8 एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड। एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड। 8 एस्कोस्पोर होता है, 8 एस्कोस्पोर होता है। उसके बाद एस्काई आर कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? पाराफाइसिस। पाराफाइसिस एक लेयर है। ठीक है, नाउ जो सोमाटिक टिश्यू है जो एस्काई को घेर के रखा है वो क्या है? एस्कोगोनियम हाइफी है, एस्कस मदर सेल है और एस्कोस्पोर है। द सोमाटिक टिश्यू सराउंडिंग द एस्काई, ये क्या क्या है? ये है एस्कोगोनस हाइफी, एस्कोगोनस हाइफी। दूसरा है एस्कस मदर सेल और तीसरा है एस्कोस्पोर। ठीक है, एंड पैराफाइसिस, ये जो पैराफाइसिस जो एस्कोस्पोर को घेर के रखा है, एंड पैराफाइसिस ये क्या बनाएगा? फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी। फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या बनाएगा? ये फ्रूटिंग बॉडी को बनाएगा। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी दो में से कोई एक हो सकता है, या तो डिस्क लाइक एपोथेसियम हो सकता है, जो डिस्क लाइक होगा एपोथेसियम, या फ्लक्स सेपेड पेरीथेसियम हो सकता है, पेरीथेसियम। ठीक है, हो गया। अब एस्कोस्पोर एस्कस से लिबरेट होगा और जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आएगा, ये एक न्यू लाइकेन थायरस को बनाएगा। एस्कोस्पोर आर liberated from ascus and on coming in contact with
सुटेबल एल्गी, ठीक है, एस्कोस्पोर लिबरेट होता है एस्कस से, और जैसे ही सुटेबल, ठीक है, एल्गी के साथ कांटेक्ट में आता है, क्या फॉर्म करता है, फॉर्म अ न्यू लाइकेन थैलस। क्योंकि लाइकेन सिर्फ फंजाई से नहीं बन सकता है, उसके साथ उसको एल्गी भी चाहिए। मोस्ट ऑफ द पार्ट में वो ग्रीन एल्गी होता है और कुछ केस में वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। बेसिकली देखा गया है कि जो एस्कोलाइकेन है, जिसके एस्कोमाइसिटीज है, उसके साथ ग्रीन एल्गी जुड़ता है, और जो बेसिडियोलाइकेन है, जिसमें बेसिडोमाइसिटीज है, उसके साथ जुड़ता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ओके, समझ आया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि तुम्हारे कोर्स में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओइडिया, कॉइनिडिया और पिक्निडियोस्पोर। ये भी एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय व्हाट, बाय ओइडियम, कॉनिडिया और पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर, ओइडिया, कॉनिडिया और पिक्निडियोस्पोर। अब जो लाइकेन है, इस लाइकेन का दो पार्ट है, एल्गी और फंगाई। तो जो फंगल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट, ठीक है, वो फॉर्म करेगा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब ये जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ये कुछ भी हो सकता है, ओइडिया हो सकता है, कॉनिडिया हो सकता है, या पिक्नियो स्पोर भी हो सकता है, ठीक है, पिक्निडियोस्पोर, ठीक है। ये पिक्निडियोस्पोर जब डिस्पर्स होगा, यानी जब इसका डिस्पर्सल होगा और ये सूटेबल सबस्ट्रेटम में जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा फंगल हाइफी। ये क्या बनाएगा, फंगल हाइफी। ये फंगल हाइफी जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, किसका, कम इन कांटेक्ट विथ सुटेबल सबस्ट्रेटम, जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम की ये कांटेक्ट में आएगा, ये क्या फॉर्म करेगा, न्यू लाइकेन थैलस, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओइडियम कैसे होता है, या कॉनिडिया या पिक्निडियोस्पोर, ये तीनों ही एसेक्सुअल स्पोर है। सबसे पहले जो लाइकेन है, इसका फंगल कंपोनेंट में रिलीज होगा, फॉर्मेशन होगा, सॉरी, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर का। यह है ओइडिया, कॉनिडिया या पिक्निडियोस्पोर। अब ये जब अपने हाइफी से रिलीज होगा और रिलीज होकर डिस्पर्स होगा, फैलेगा, और फैलने के बाद सूटेबल सबस्ट्रेटम में गिरेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा न्यू लाइकेन थैलस। दैट इज द रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइकेन का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, समझ आया यहां तक? Now we go through a new topic of lichen, that is economic importance of lichen. Economic importance of lichen. ओके, देखो सबसे पहले
लाइकेन जो है ये दीज आर नोन एज द पायोनियर ऑफ वेजिटेशन इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो बैरन रॉक है उस सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं जेरोसेयर। इकोलॉजिकल सक्सेशन में उसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो प्रोड्यूस होता है वो है तुम्हारा लाइकेन। तो लिखेंगे सबसे पहला है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ लो। सबसे पहले है द lichens are pioneer of vegetation in लिथोस्फीयर। लाइकेन जो है वो पायोनियर है लिथोस्फीयर में वेजिटेशन यानी रॉकी सरफेस में वेजिटेशन का। इसमें क्या होता है, लाइकेन शुरुआत करता है, इनिशिएट बायोलॉजिकल सक्सेशन, बायोलॉजिकल सक्सेशन कहां पे, बायोलॉजिकल सक्सेशन इन रॉक्स, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, कैसे, बाय फॉर्मिंग एसिड, बाय फॉर्मिंग एसिड। कौन सा एसिड, लाइक कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या करता है, लीड्स टू, ये जो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, लीड्स टू formation of soil, and this process of formation of soil is called pedogenesis. In pedogenesis, in pedogenesis, so lichen को कहा जाता है farmer of the nature. So lichens are called फार्मर ऑफ नेचर। ठीक है, अब लिथोस्फीयर में ये सीक्वेंस कैसे होता है वो समझ लो। इन लिथोस्फीयर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहले होगा क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन से होगा फोलियोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन के बाद होगा फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन के बाद होगा मॉस स्टेज, मॉस स्टेज, मॉस स्टेज के बाद होगा हर्ब स्टेज, हर्ब स्टेज के बाद होगा सर्ब स्टेज, सर्ब स्टेज के बाद होगा ट्री। ठीक है, और ये ट्री जो है ये क्लाइमेक्स स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज है। ठीक है, तो ये हो गया लिथोस्फीयर का डिफरेंट स्टेजेस। समझ आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एज फूड।
ऐसा बहुत सारा लाइकेन है जो जापान में, इजिप्ट में, या इवन हमारे इंडिया में जो साउथर्न पार्ट है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, वहां पे भी, गोवा में एज अ फूड यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज फूड। एज फूड, ये सब क्वेश्चन आते इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा, है तो बहुत सारा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताएं। ठीक है, अम्बिलिकेरिया ये एक फूड के रूप में यूज होता है जापान में। अम्बिलिकेरिया, ठीक है, यूज्ड एज फूड इन जापान, ये जापान में एज अ फूड यूज होता है। जबकि इंडोकार्पोन मिनिएटम जापान में एज अ वेजिटेबल यूज होता है। इंडो कार्पोन मिनिएटम used as vegetable in Japan, ये जापान में एज अ वेजिटेबल यूज होता है। इंडोकार्पोन मिनिएटम। थर्ड, इवर्निया, ये बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है इजिप्ट में। इवर्निया used in बेकरी प्रोडक्ट, है ना, ब्रेड, केक, ये सब कहां पे? बाय इजिप्शियन, यानी इजिप्ट में। उसके बाद जो पामेलिया है उसको हम बोलते हैं रॉक फ्लावर, और ये साउथ इंडिया में एज अ फूड यूज होता है। स्पीसीज ऑफ पामेलिया, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्या? रॉक फ्लावर, इसको कहा जाता है रॉक फ्लावर, एंड यूज्ड एज फूड इन साउथ इंडिया, यूज्ड एज फूड इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया फूड के रूप में। अब देखो नेक्स्ट है लाइकेन एज अ सोर्स ऑफ डाई। डाई मतलब समझते हो ना, जो कलर किया जाता है। लाइकेन एज अ सोर्स ऑफ डाई। देखो बेसिकली तुम लोग सब अवेयर हो व्हाट इज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक एसिड बेस इंडिकेटर है, और लिटमस पेपर जिससे ऑब्टेन्ड होता है वो एक फंगस है जिसका नाम है रोसेला मोंटागेनी। ठीक है, तो फर्स्ट होगा लिटमस पेपर, इसको भी क्या कहा जाता है? एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर इज obtained from क्या? रोसेला, ROCCELA, रोसेला मोंटागनी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, ऑर्किल से ब्लू डाई बनता है, ऑब्टेन फ्रॉम रोसेला एंड लैकोर्निया। ठीक है, एंड ऑर्किल को क्या कहा जाता है? ब्लू डाई। ऑब्टेन फ्रॉम पहला ये रोसेला, एंड दूसरा लिकानोरा एंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है, लिकानोरा एंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्किल। ठीक है, बोला जा रहा है लिकानोरा ऑर्किल इस क्या है? तो ये जो ऑर्किल है ये ऑब्टेन्ड होता है रोसेला और लिकानोरा नाम के किससे? लाइकेन से। अब इस ऑर्किल का जो प्यूरिफाइड फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं?
ऑरिसिन, ऑरिसिन एंड यूज्ड एज बायोलॉजिकल स्टेन, और इसको बायोलॉजिकल स्टेन के रूप में यूज होता है, यानी डिफरेंट सेल को कलर करने के लिए इस ऑर्सिल का यूज होता है। और ये ऑर्किल किस कलर का डाई है? ब्लू डाई, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, लाइकेन एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखो, उसनिक एसिड जो कि उसनिया बनाता है, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये उसनिया के साथ साथ क्लैडोनिया से भी ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, उसनिक एसिड, उसनिक एसिड क्या है? इज an important broad spectrum antibiotics and is obtained from Usnea and Cladonia। ठीक है, ये पहला हो गया एज अ मेडिसिन। दूसरा पामेलिया सेक्साटेलिस, इसको यूज किया जाता है अगेंस्ट इपिलेप्सी। पामेलिया, PARMALIA, सेक्साटेलिस ये हो गया स्पीसीज, इज यूज्ड अगेंस्ट इपिलेप्सी, इपिलेप्सी। ठीक है, नेक्स्ट जो जॉन्डिस होता है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूज होता है जो लाइकेन का सोर्स है, वो है ज़ैंथोनिया पेरिटियोना। क्या नाम है? ज़ैंथोनिया, ज़ैंथोनिया पेरियोटिना। ज़ैंथोनिया पेरिटोनिया जो है इज यूज्ड अगेंस्ट जॉन्डिस, इसको जॉन्डिस के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। अब मॉडर्न डे में देखो, कोरोना में लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें लोबेरिया पल्मोनेरिया को लंग्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। लोबेरिया पल्मोनोरिया, लोबेरिया पल्मोनोरिया इज यूज्ड अगेंस्ट लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज होता है। उस लाइकेन स्पीसीज का नाम है लोबेरिया पल्मोनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रो लाइकेस्टेरनिक एसिड जो कि लाइकेन से ऑब्टेन्ड होता है, ये एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी एंटी कैंसरस के रूप में यूज किया जाता है, ड्रग्स के रूप में। ठीक है, प्रो लाइकेस्टर्निक एसिड is obtained from some lichen, and this acid किसके रूप में काम करता है? This acid acts as anti-carcinogenic, carcinogenic ड्रग के रूप में यूज होता है। कौन? प्रोलाइस्टर्निक एसिड। ठीक है, तो ये मेडिसिन का हो गया। पहला उसनिक एसिड, दूसरा पामेलिया सेक्साटेलिस जो कि एपिलेप्सी के लिए यूज होता है, ज़ैंथोनिया पेरिटोनिया जो कि जॉन्डिस में यूज होता है, लोबेरिया पल्मोनरिस जो कि
लंग इन्फेक्शन में यूज हो रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा इसका यूज होने लगा है ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, टू सेव फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। तो ये हो गया लाइकेन का यूज एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन। ये समझ आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो लाइकेन है इसका ब्रीविंग और अल्कोहल इंडस्ट्री में या डिस्टिलेशन में क्या रोल है, ठीक है, ब्रीविंग एंड डिस्टिलेशन। ब्रीविंग एंड डिस्टिलेशन। सबसे पहले लाइकेन में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको लाइकेनिन कहा जाता है, और सम लाइकेन जैसे कि सिराटेरिया है, लिकोनोरिया है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए इसलिए यूज होता है। तो लिखेंगे द लाइकेन कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट, लाइकेन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कॉल्ड लाइकेनिन, लाइकेनिन। सो सम लाइकेन, सो कुछ लाइकेन है जैसे कि सो सम लाइकेन लाइक क्रिटेरिया, ठीक है, एंड लिकानोरा एंड लिकानोरा जो है, ठीक है, एंड लिकानोरा जो है आर यूज्ड फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम। सोप बनाने में इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। देखो सम लाइकेन में, कुछ लाइकेन में एरोमेटिक सब्सटेंस होता है जैसे इवर्निया और रेमालिना में, ठीक है। सम लाइकेन्स हैव एरोमेटिक सब्सटेंसेस, कैसे, लाइक इवर्निया एंड रेमालिना, इवर्निया एंड रेमालिना आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, है ना, सोप मेकिंग में इसका यूज किया जाता है। और एक है इसका नाम है ऊसनिया। ऊसनिया गर्मी के दिन में फॉरेस्ट फायर का एक बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर। तो देखो ऊसनिया पॉपुलरली known as old man beard, ठीक है, is of inflammable nature, ये ज्वलनशील नेचर का होता है, inflammable nature, and this usnea is responsible for forest fire. Usnea is responsible for forest fire during समर सीजन, ठीक है। इसलिए ऊसनिया फॉरेस्ट गर्मी के दिनों में इतना खतरनाक है किसी भी डेंस फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि ऊसनिया हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और गर्मी के दिनों में ये आसानी से फॉरेस्ट फायर का कारण बनता है, ठीक है। सो इट नोन एज, ऑल्सो नोन एज ओल्ड मैन बियर्ड, ठीक है, समझ आया। सो इन दिस वे lichen is completed. In the next class we deal about mycorrhiza. What is mycorrhiza? It is a symbiotic association between fungal hyphae with the roots of higher plants.
So from mycorrhiza we will start in the next class. That's all for today. Thank you.